Very warm good evening to all the honorable guest of honors, respected doctors, all present here, boys and girls, all the audience. This indeed is a very wonderful evening, and we all have gathered here for the annual fest, that is Synapse 2017, in this GMCJ alumni. I, Aditi Deval, Myself, Vasudev Sen. shall be your host for the evening. It's my great pleasure and first and foremost duty on behalf of Students Union GMCJ alumni to warmly welcome you all to this wonderful evening. We assure you that the evening will be full of excitement and you will enjoy a lot. Now may I have the privilege to first of all welcome the guest of honor for this evening, and ladies and gentlemen, put your hands together for honorable member of the parliament Shri Dinesh Kashyap sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए. सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कॉलेज पर पधारे और हमारे कॉलेज का मान बढ़ाया. And also I would like to call upon the President of the Students' Union of the GMCJ fraternity, Shubham Sharma, final MBBS, to felicitate honorable guest Shri Dinesh Kashyap sir with the bouquet. Moving on, without the blessings and permission of this personality, our function could not have been possible. I would like to welcome Honorable Dean Sir, Dr. U.S. Pegra Sir. Ladies and gentlemen, huge round of applause for Honorable Dean Sir. And I would like to call upon the Vice President of the Students' Union, Rajat Hotla, final MBBS, to felicitate Honorable Dean Sir. To also welcome Shri Jairam Das Manikpuri ji, the Jila Adhyaksh, Bharatiya Janata Yuva Morcha. Ladies and gentlemen, please huge round of applause. And I would like to call upon Rajat Keshav Hota to felicitate Shri Jairam Das ji Manikpuri. Proceed by offering our blessings to Ma Saraswati, the goddess of wisdom. So I would request all the guests to join us on stage to light lamp before Ma Saraswati. के देवी है, हम उनकी वंदना और प्रज्वलन के लिए माननीय अतिथि महोदय और हमारे डीन सर से बहुत बहुत माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुख हरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुख हरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथिगण. Now I would request Honorable Dean Sir, Dr. U.S. Pakra, to shower his blessings upon us. So please come on stage. आज के वार्षिकोत्सव 2017 सैनप्स के मुख्य अतिथि माननीय श्री दिनेश कश्यप जी, सांसद बस्तर. विशेष अतिथि जयराम जी, मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट एवं कर्मचारियों को आज के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में सभी को स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन. मैं मेडिकल कॉलेज के बारे में दो शब्द ही कहूँगा. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर
का भूमि पूजन 9 अगस्त 2008 को किया गया, पर इसके पहले 2006 में इसकी विधिवत कॉलेज शुरू हो गई थी, पर भूमि पूजन 2008 को किया गया। मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण फरवरी 2013 में पूर्ण हो गया। अब उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 3/10/2013 को किया गया। इसके फलस्वरूप कॉलेज भवन का स्थानांतरण मार्च 2014 को किया गया। तब से कॉलेज भवन यहीं चल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि निकट भविष्य में महीना, 2 महीना, 3 महीना में अपना हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको भी शिफ्टिंग की प्रोसेस में है। कॉलेज तो महाविद्यालय तो बन जाती है, पर महाविद्यालय से अपने जो पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। फायदा होता है तो केवल स्टूडेंट को, जब तक कि हमारा अस्पताल भवन पूर्ण नहीं हो जाता है, जिससे कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, तभी हम लोगों को हर्ष होगा कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पूर्ण हो जाए और हम लोग शिफ्ट कर लें। धन्यवाद। Endowing us with your words of wisdom and experience. In the next segment, I would like to call upon Shri Jairam Das Manikpuri ji to share his thoughts about this function and spread some thoughts. Shri Jairam Das Manikpuri ji, एक बार जोरदार तालियां। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, आइए। आज शासकीय मेडिकल कॉलेज जगदलपुर स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी, दादा हमारे बस्तर के राजनीतिक प्रेरणा पुंज और बस्तर में विकास के प्रवाह, राजनीतिक सुचिता के प्रवाह, ऐसे उनके नाम से हमारा मेडिकल कॉलेज, और आज इस मेडिकल कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पधारे बस्तर के हमारे सम्माननीय परम आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक माननीय दिनेश कश्यप जी, और इस मेडिकल कॉलेज के डीन सर डॉक्टर पैकरा जी, और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित पेरेंट्स और मेरे प्यारे भाई बहनों, मेडिकल कॉलेज से मेरा नाता आपके फर्स्ट बैच से रहा है, और मैंने हमेशा इस कॉलेज के छात्रों के लिए या फिर बस्तर संभाग के किसी भी कॉलेज की समस्याओं को लेकर हमेशा से आप लोगों के बीच मौजूद रहा हूं, और फर्स्ट बैच से लेकर आज तक आपके मेडिकल कॉलेज के सभी बैचेस से मेरा नाता रहा है, और मैं डॉक्टरों को बहुत करीब से समझता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे बीच क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय दिनेश कश्यप जी मौजूद हैं, और आज उनके पास इस कार्यक्रम के बाद पुनः और कई कार्यक्रम हैं, और उनको अतिशीघ्र उस कार्यक्रम में जाना है। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं माननीय सांसद जी से आग्रह करता हूं कि वे इस मेडिकल कॉलेज के संपूर्ण विकास के लिए, वह भी चर्चा भी कर रहे थे कि उन्होंने बस्तर को विशेष रूप से ध्यान दे रहे हमारे केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर के सामने भी अपनी कॉलेज की बात रखी है,
और मुझे ये जानकर गर्व होता है कि जगदलपुर का ये मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित हुआ है। और यहाँ के छात्रों ने हमेशा विश्वविद्यालय स्तर पे अपना परचम लहराया है। आपको मैं बधाई देता हूँ इस मंच के माध्यम से। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह भी करता हूँ, केवल प्रोफेशनल होने की वकालत आप लोग नहीं करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। एक अच्छा परफेक्टनिस्ट आपको अपने क्षेत्र में बनने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में डॉक्टरों की कमी आप सबके सामने मौजूद है। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में आप सब पढ़ाई करते हैं और शासन का लाखों रुपए एक ऐसे भावी डॉक्टर तैयार करने के लिए लगता है। तो मैं आप लोग से एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आज इस मंच के माध्यम से आप निरंतर अपने जीवन में डॉक्टर बनने के बाद आप पब्लिक को अपना आदर्श मानकर काम करेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर की मुस्कान इलाज से पहले किसी भी मरीज के दर्द को कम करने के लिए पर्याप्त होती है। और मैं जहां तक समझता हूं कि इस मंच के माध्यम से हमने हमेशा जिस क्षेत्र में भी काम किया है, मैंने अपने छात्र जीवन में हमारे सामने मौजूद हमारे मार्गदर्शकों के माध्यम से, उनके प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ऐसे संभाग के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए काम करने का प्रयास किया है। और मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सारी जगहों से मेरा आज से 10 साल पहले से एक अटूट संबंध है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूं कि एक अच्छे विचारों के साथ हमने हमेशा स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श माना है। और 21वीं सदी में अगर विश्व में कोई हमारे देश से जन्म हुए उस दिव्य पुरुष के जैसे पूरे दुनिया में अगर हम दर्शन करना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी के अलावा कोई हमारे पास कोई ऐसा पर्याय नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसलिए एक अच्छे विचारों के साथ अगर हम अच्छे काम को अंजाम देंगे, तो निश्चित तौर पे स्वामी विवेकानंद ने जो एक दिव्य भारत का सपना देखा था, तो मैं जहां तक समझता हूं कि डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे इस राष्ट्र के लिए हो सकता है, अगर आप लोग एक सच्ची भावना के साथ और एक अच्छे आदर्शों के साथ आप हम सबको अपनी सेवाएं देंगे। और हमको आपसे एक डॉक्टर के रूप में हम एक आदर्श डॉक्टर बनेंगे, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। क्योंकि देश से हम सब कुछ लेते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, लेकिन हम देश को देने के लिए कतराते हैं। इसलिए मैं हमारे भावी डॉक्टरों से आग्रह करता हूं कि नेशन फर्स्ट आपके जेहन में होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए। और आप सबके बीच में हमको आपने बुलाया, मौका दिया, सम्मान दिया, क्योंकि विद्यार्थियों की अगर मैं बात करता हूं, तो विद्यार्थियों में अगर 100 में से जो 5% क्रीम निकलता है, तो वो यही सामने बैठा हुआ क्रीम होता है। और डॉक्टर बनने का सपना हर विद्यार्थी देखता है। मैंने भी कभी डॉक्टर बनने का सपना देखा था। इसलिए इस मंच के माध्यम से आप सबको पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मानिकपुरी जी, हम आपकी स्वर्णिम बातों का जरूर पालन करेंगे। निरंतर बस्तर की प्रगति पर अगर सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो वो हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद श्री दिनेश कश्यप जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। अब उद्बोधन के लिए और आशीर्वाद के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द बस्तर लोकसभा श्री दिनेश कश्यप जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय सांसद श्री दिनेश कश्यप जी। एकरा साहब, सभी डॉक्टर्सगण, पेरेंट्सगण, हमारी छात्र छात्राएं, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष शुभम शर्मा जी और मेरे साथ आए जयराम मानिकपुरी जी, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वास्तव में
कि मैं पहली बार आ रहा हूँ। एक बार मैंने यहाँ पर आने का अवसर मिला जब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो चलो देखूं प्रगति कैसा है, और दूसरी बार अभी आया। लेकिन अभी भी ऐसा आया, आप लोगों ने सूचना अभी तत्काल एक दिन पहले, मतलब कल ही मेरे सूचना मिला है, और एक दिन के सूचना पर मैंने कहा चूंकि ये मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी के नाम पर है और उनका योगदान इस बस्तर संभाग के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हमको याद करते हैं, और बस्तर जैसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जहां पर मेडिकल कॉलेज, और मुझे जानकर खुशी हुई यहाँ पर जो है ना बस्तर संभाग के लगभग 74 कितना बता रहे थे डॉक्टर साहब, 64 बच्चे यहाँ पर डॉक्टर बनने को लिए मतलब यहाँ पर शिक्षारत है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और छत्तीसगढ़ के सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का भी खुशी है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्रियों का नजर इस बस्तर के प्रति लगा रहता है। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर एक नई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो है ना स्वीकृति मिल चुका है, और उसका भी जब तत्काल निर्माण होना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के अवसर पर ये कह सकता हूं कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, और डॉक्टर बनने के बाद जैसे एक आशा रहता है, भगवान जन्म देता है, लेकिन आप लोग सेवा भावना के साथ काम करेंगे तो दूसरा भगवान भी आप ही हैं, ये मान के चलिए। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, देश ने क्या दिया ये मत सोचिए, देश को हमने क्या दिया, देश के लिए हमने क्या किया, इस भावना के साथ, देश प्रेम के साथ। और डॉक्टर तो ऐसा है कि आप जो है ना, मैं कह सकता हूं कि आप ऐसा मान के चलिए, जिस सेवा भावना के साथ काम करेंगे, मैंने जैसा कहा भगवान से भी आपका कद कम नहीं है। तो आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे गरीब दीन दुखियों के सेवा में एक मन में एक इच्छा शक्ति ठान लीजिए। सेवा भावना के साथ जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आता है। हमने भी देखा था, कभी सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, कभी नहीं सोचे थे, लेकिन बनने के बाद ये सोच में आता है, ये समझ में आता है कि आखिर जनता जनार्दन ने हमको सांसद क्यों बनाया, हमको विधायक क्यों बनाया, हमसे उम्मीद क्या करते हैं, हमसे अपेक्षा क्या करते हैं। तो मन में एक तलवार लटकता रहता है कि आज जीवन में कभी उनके प्रति मैं समर्पित भावना से कितना काम करूंगा, इन भावनाओं के साथ। और जो है ना, मैं हमेशा इसलिए लगातार एज ए सांसद मुझे कितना यहाँ पर बस्तर के लिए करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, ये मेरे मन में है। और जो है ना, चूंकि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, हमारी सरकार केंद्र में है, तो बहुत सारी संभावना, जैसा कि रेल की बारे में बात करूं, चाहे प्लेन के बारे में बात करूं, आने वाले दिनों में जून जुलाई में आपको प्लेन की सुविधा मिल जाएगी। आने वाले 5 साल में हमारा रावघाट का ट्रेन भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। और हमने अभी जो है ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मालूम होगा कि हमने एक ट्रेन जो है ना विशाखापट्टनम तक चलाने के बाद कहा, और राष्ट्रीय राजमार्ग का भी काम हो रहा है। तो बस्तर संभाग जो है ना, विकास की दृष्टि से सर्वांगीण विकास की ओर है, संभावनाएं बहुत है। बस आज के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप सभी अपने जीवन में ऐसा कार्य कीजिए और ऐसा छाप छोड़िए कि समाज में एक पहचान बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, यही कामना है। और आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम ऑनरेबल डीन सर and Shri Jaramdas Manikpuri ji to come on stage for the prize distribution. Miss N. Peshita, the honor of our college. She has been the university topper for 4 consecutive years. She had brought great glory to our college.
Please, ma'am. पिछले 4 साल से निरंतर पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर रही हैं 2012 बैच की इंटर्न डॉक्टर एन पेशिता मैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैडम की। माननीय महोदय के द्वारा बुके और प्राइज दिया जा रहा है। थैंक यू सर। मूविंग ऑन इन द प्रेजेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। स्पोर्ट्स की जो इवेंट है बहुत एंजॉय किया लोगों ने। आप सभी को स्पोर्ट्स में काफी मजा आया कि नहीं? क्या बात है। 16 बैच काफी खुश है, हमारी सबसे फ्रेशर्स बैच है। तो क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। मूविंग ऑन फ्रॉम द स्टूडेंट्स पार्ट, those team which went on the final in boys cricket, I would like to call upon the captain of 2014 batch, the winner of the boys cricket. I would like to welcome the captain and few players to receive the award from honorable sir. माननीय श्री सांसद जी से अनुरोध है कि वो प्राइज दें और हम सभी बच्चों का मान बढ़ाएं। Now the runner up of boys cricket 2013 बैच, जोरदार तालियां। मैं ऑनरेबल डीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारे बच्चों को ट्रॉफी प्रदान करें। The next prize is for the winner of girls cricket. It goes to 2016 batch. I would request Honorable Jairam Das Manikpuri ji to give the prize. Girls cricket is 2013 batch. The captain is requested to come on stage and other players also join. अनुरोध करूंगा कि वे हमारी गर्ल्स 2013 वुमेन्स टीम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें और सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 2013 मैच। फुटबॉल पर आते हैं एंड द विनर फॉर फुटबॉल बॉयज इज 2015 बैच। रिक्वेस्ट ऑनरेबल डीन सर टू प्रेजेंट देम विद द प्राइज। The runner-up in football is 2016 batch. डिमांड आया है कि वाईफाई की व्यवस्था यहाँ पर पहुंचे, तत्काल वाईफाई की व्यवस्था पहुंचे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ और हो जाएगा बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना एसी लग जाएगा? कितने हो गए टोटल? चलिए चलिए, आपकी बात भी सही, 9 ही सही, 9 एसी लगेगा, ठीक है। चलिए 10 भी सही, 10 हो गया 10 एसी लग जाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। हम इसके लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, माननीय श्री जयरामदास जी मानिकपुरी एंड ऑनरेबल डीन सर। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। We are honored to have with us Honorable Chauhan ji, Adhyaksh. I would request Sagar Sachdev to felicitate him. Sunil Fardia to felicitate Upadhyaksh Bastar Parivahan Sangh Vijay Vishwakarma ji. Ved Prasad Pradhan from 2013 batch to felicitate the secretary
of बस्तर परिवहन संघ श्री राजीव शर्मा जी। अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय बस्तर परिवहन संघ श्री चौहान जी। सामने मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई सांसद दिनेश कश्यप जी, पैकरा साहब, डीन साहब और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पढ़ने वाले भाई बहन बच्चे, आप सबको वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। आज यहाँ पर दिनेश कश्यप जी हैं। दिनेश कश्यप जी ने जिस तरह से आपकी मांगों को पूरा किया है, किसी समय महारानी अस्पताल में कुछ भी नहीं था, जितना 50 साल में बस्तर के सांसदों ने दिया होगा उतना हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप जी ने महारानी अस्पताल को दिया। जब भी पैकरा साहब सामने बैठे हैं, जब भी महारानी अस्पताल के लिए किसी भी तरह की कोई मांग की जाती थी, परम श्रद्धेय स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी से हमेशा उन्होंने पूरा किया, चाहे जो हो, चाहे जितने का हो। यहाँ से होता था, अपने पास से देते थे, जो कमी होती थी केंद्र सरकार से दिलवाते थे। आप बच्चों को मैं, सांसद जी सामने बैठे हैं, लेकिन आप बच्चों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, माननीय हमारे बड़े भाई दिनेश कश्यप जी हमेशा आप लोगों के लिए और पूरे बस्तर के विकास के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे। उसी कड़ी में बस्तर परिवहन संघ से जब भी जो भी छोटी मोटी मदद की जरूरत होगी, हम आप लोगों के सदैव साथ रहेंगे। धन्यवाद। सुवा नाचा जानथस वो? नहीं। राउत नाचा जानथस वो? नहीं। पंथी ददरिया जानथस वो? नहीं। तते का जानथस वो? छत्तीसगढ़ी जानथस? और कौन कौन नहीं जाने भैया छत्तीसगढ़ी? सुवा, नाचा, पंथी, ददरिया, कर्मा, लगते कोनो नहीं जाने। अब आप मन का हरे हा इला प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देखो। छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति, लोकगीत है, लोक कला है, वो देश विदेश में फेमस हो चुकी है और इसमें हमारे जितने भी लोक कलाकार हैं उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। हमारी जो पंडवानी गायिका हैं उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, माननीय पद्मश्री श्रीमती तीजन बाई जी। तो ऐसे लोक कला जो हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष और देश दुनिया में जो प्रख्यात है, आज उन्हीं छत्तीसगढ़ की कला को प्रस्तुत करने के लिए अब हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे 2016 बैच के गर्ल्स एंड बॉयज, साथ में मनीष कुर्रे 2013 बैच। Here come Manish Kurre and 16 batch. Please welcome them.
क्या बात है, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति 2016 के बैच के बॉयज एंड गर्ल्स के द्वारा। Friends, music is a form of expression that directly connects to the soul. So, the next performance is an innovative form of music. इनोवेटिव फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इनोवेटिव मींस It's a cappella. क्या इसमें इनोवेटिव क्या है भाई? A cappella means music without the use of any musical instrument, just by the use of voices and objects. यू मीन म्यूजिक विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? Yes. तो इसमें तुमको पता है कुछ स्पेशल क्या है इसमें? क्या? इसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। So here we present to you a group song. Music. A big round of applause for them. थैंक यू उसमें मैं भी था। चलिए। So, what's our next performance? I still feel lost. Okay, but वापस आते हैं। I don't get you यार। यहाँ पे कुछ कल एक फिल्म रिलीज हुई, राइट? बाहुबली। ओके, बाहुबली पार्ट 1 का गाना काफी फेमस हुआ था। तो आज हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट बाहुबली की परिभाषा देंगे। Here comes 16 batch boys for performing a group dance on a song from Bahubali. एक बार जोरदार तालियां 2016 बैच के बॉयज के लिए।
दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, बाहुबली भी देख लिया, छत्तीसगढ़ी डांस भी देख लिया, तो अब नेक्स्ट क्या है वासी? नेक्स्ट कहो तो हमारे पड़ोसी महाराष्ट्र का कुछ दिखाते हैं आपको। यू मीन लावनी? बिल्कुल, अब बारी है लावनी की। I welcome Neetu
and Ashima for a duet dance performance. एक बार लावणी परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा बल पिंग्याली माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी सच सच मेरे दिल की सांवी से मंत्री तेरे बिना देखो आज खिला हिमाचल धोनी चम चम चमकती चम हिमाचल धोनी चम चम चमकती चम पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा घड़ी घड़ी चिक थोड़ी थोड़ी चिक शोर मचाए रे हाय मेरी चुनरी पे सरकी जाए रे घड़ी घड़ी चिक थोड़ी थोड़ी चिक शोर मचाए रे हाय मेरी चुनरी पे सरकी जाए रे graceful performance. A big round of applause for them. इसी बीच हमारे साथ में माता रुक्मणी आश्रम के बहुत ही ज्यादा प्रतिभावान बच्चे उपस्थित है। एक बार उनके जोरदार तालियां। माता रुक्मणी आश्रम से बच्चे देश विदेश में भी जाकर आ चुके हैं। Now it's time to give the prizes for excellence in sports. In sports or the major sports, I would like to call upon the winning team from the boys volleyball in the students match 2014 batch. I'd request 2014 batch boys to please take their trophy from the honorable guest Shri Dinesh Kashyap ji. Team 2015 batch in the volleyball boys to take their trophies from the honorable guest of honor श्री चौहान जी, अध्यक्ष बस्तर परिवहन संघ। एक बार जोरदार तालियां 2015 बैच के बॉयज के लिए। वॉलीबॉल टीम रनर अप स्टूडेंट्स गेम 2015 batch. I would request Honorable Dean Sir to give the trophy. In girls volleyball 2016 batch,
I would request Honorable Jairam Manikpuri ji to give the trophy. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स। अदिति, लोग याद आते हैं, दौर भले छूट जाए, बातें याद आती हैं, सपने भले टूट जाए, क्योंकि कल तक ये सपना था कि तुम मेरी हकीकत हो और आज ये हकीकत है कि तुम मेरा सपना हो। Depression is a very big problem in the world today. It affects so many people, but still it remains a social stigma. People don't want to talk about it, and it remains confined to the within the walls of homes. So, to create awareness for depression and to fight against depression, here I call Yatendra Prakash Gajendra and 16 batch boys to perform a skit titled Depression Let's Talk. And ladies and gentlemen, I'd like to also tell you one thing. This year, the World Health Organization theme for the health is Depression Let's Talk. So to present this, I would like to call upon the director of this skit, Yatendra Prakash Gajendra from 13 batch and the very talented 2016 boys. जो यहाँ बैठे किसी भी शख्स की हो सकती है। विकी एक नॉर्मल इंसान था जिसके नॉर्मल दोस्त थे, नॉर्मल आदतें थीं, और नॉर्मल लाइफस्टाइल थी। लाइट्स ऑफ। फिर इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया, आइए जानते हैं इस नाटक के माध्यम से। ट्रिंग। हेलो पापा। हेलो विकी बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ पापा। देखो विकी बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारी काफ़ी लो रैंकिंग के कारण तुम्हें ये कॉलेज मिला है। पापा प्लीज़, मैं एमबीबीएस नहीं करना चाहता। देखो विकी बेटा, तुम्हारे अच्छे बुरे की समझ है मुझे, इसलिए जितना कहा जाए उतना ही करो। हेलो, कौन? हाउ डू यू गॉट एम्स? कांग्रेट्स जोया, आई एम विकी। कौन विकी? मैं किसी विकी को नहीं जानती। डोंट यू रिमेंबर द ब्यूटीफुल टाइम वी स्पेंट टुगेदर इन कोटा? Yeah, we were together, but right now I have moved on, so I expect the same from you. Don't call me again. हेलो हेलो, जोया जोया। चलना यार विकी, फुटबॉल खेलने चलते हैं। चलना विकी, चलना यार। नहीं यार, मूड नहीं, तू जा। यार ठीक है, मैं समीर से पूछ लेता हूँ। ओके बाय। विकी विकी विकी। अरे और यार विकी कैसा है यार? केतन ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। क्या हुआ यार विक्की, कुछ प्रॉब्लम है क्या? केतन लगता है हमारी दवाई का एक घूंट इसे पिलाना ही पड़ेगा। चलो फिर बैठक बैठाते हैं आज। चलो फिर। बोल। नहीं यार विक्की, अब तो कॉलेज पहुंच गया, अब नहीं पिएगा तो कब पिएगा? यार एक घूंट लेके तो देख, हर मर्ज की दवा है ये। चल आजा आजा, चल बैठ जा। आजा। बैठते हैं। चल यार केतन, पैक बना यार। चलो चल, ग्लास उठा यार विक्की। अरे उठा ना, उठा। चल चीयर्स। यार विक्की, चीयर्स करने के बाद भरी ग्लास वापस नहीं रखते। चल पी ले पी ले पी ले। अरे पी ले, अरे पी ना। ये हुई ना बात। शाबाश, गुड बॉय। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो विकी बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ पापा। पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? पापा प्लीज, मैं एमबीबीएस नहीं करना चाहता।
नहीं है मुझको इसी में इंटरेस्ट। फिर वही बात, तुम्हारी इसी जीत के कारण देखो तुम किस कॉलेज में हो। और शर्मा जी के बेटे को देखा, मौलाना आजाद में पढ़ता है। Don't call me again. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। शर्मा जी के बेटे को देखो, मौलाना आजाद में पढ़ता है। Don't call me again. शर्मा जी के बेटे को देखो, मौलाना आजाद में पढ़ता है। Don't call me again. शर्मा जी के बेटे को देखो, मौलाना आजाद में पढ़ता है। by at least 2 weeks of low mood that is present across most situations. If symptoms are left untreated, it may lead to suicide. अब आगे की कहानी में हम ये देखेंगे कि विक्की को अच्छी संगति और अच्छी नसीहत मिल जाती तो शायद विक्की की ज़िंदगी कुछ इस प्रकार होती। और यार विक्की, एग्जाम कैसा गया? विक्की, क्या यार, विक्की कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव करने लगा है। यार मुझे भी लग रहा है, बड़ा उदास उदास सा रहता है। जाके उससे मिलना चाहिए, हम मिल के आना पड़ेगा। चल यार। विक्की, और विक्की कैसा है? पीसीटी कैसा गया विक्की? क्या यार, कुछ दिनों से देख रहे हैं तू अकेले अकेले रहने लगा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या विक्की? घर में कोई परेशानी है क्या? लड़की वड़की एक चक्कर है क्या? बता दे प्लीज, मत बोल यार। अरे यार क्या हो गया यार? क्या यार, विक्की की हालत तो दिनों दिन खराब होती जा रही है यार। यार मुझे भी लग रहा है कुछ तो है जो विक्की हमसे छुपा रहा है। हाँ यार, इसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ, ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है यार? हाँ, क्या कर रहा है? तेरी ऐसी हालत हमें ऐसे देखी नहीं जाती यार। अरे बता, कुछ कोई प्रॉब्लम है तो बता, हम तेरे दोस्त हैं। हमें नहीं बताएगा तो और किन्हें बताएगा? बता यार। विक्की, विक्की, अरे यार दिनों दिन खराब होती जा रही है इसकी हालत, इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मुझे भी लग रहा है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चल इसे डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा। चल चल। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरे दोस्त कुछ दिनों से परेशान है। मुझे नहीं लगता कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है। तो कहाँ है वो? ठीक है, आप बैठिए और आप दोनों बाहर इंतजार कीजिए।
performance. And now I'd like to call upon our senior, Dr. Mahesh Prasad Gupta sir, to share his experiences as a medical student. Huge round of applause for Dr. Mahesh Prasad Gupta sir from 2012 batch.